भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे ইতিহাসে গিয়ে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের যে বলিদান তাকে আমাদেরকে গ্রহণ করে নিতে হবে। সেই যুবদেরকে আমাদেরকে স্মরণ করে এই সরদার ভাই প্যাটেল জয়ন্তীটা আমরা আশা করি আর সুন্দরভাবে গোটা ভারতবর্ষে নাই পুরো দেশের বাইরে ওনার পরিচয়টাতে আমরা তুলে রাখবো। বন্ধুগণ, আপনাদেরকে বেশি না কথা বলে আমি আমার বক্তৃতাটা এখানে বিরাম দিচ্ছি। আমার সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। বিশিষ্ট সমাজসেবী কল্যাণ সাহাকে ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এবারে আপনাদের সামনে এই একতা যাত্রা বল্লভভাই প্যাটেলের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে যার সূচনা করা হলো সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ডক্টর আশিস ধারা। আপনাদের প্রথমে আমাদের সবার অভিভাবক বিশিষ্ট সমাজসেবক মাননীয় অভিজিৎ তাকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি। আজকে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি একটা ইউনিটি মার্চ, একতা যাত্রা। এই একতা পদযাত্রা আমরা বর্ধমানের ডিভিসি মোড়, যেটা বর্ধমান উত্তর বিধানসভার একটা প্রান্ত, সেখান থেকে শুরু করে আমরা বর্ধমানের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটে পৌঁছেছি। আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি রাজ্যসভার সাংসদ, যিনি সুদূর দিল্লি থেকে আজকে এসছেন, সম্মানীয় সুরেন্দ্র সিং নাগার মহাশয়। আপনারা সবাইকে আমি অনুরোধ করবো ওনাকে একটা করতালি দিয়ে সংবর্ধনা দেবেন। এছাড়া এই প্রোগ্রামের জন্য, এই প্রোগ্রাম হচ্ছে মাই ভারতের প্রোগ্রাম। মাই ভারত থেকে আছেন উত্তরীয় আমাদের উত্তরা ম্যাডাম আছেন, আমাদের রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক কুন্দন ভাই আছেন, রাজ্য মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা আমাদের মৌমিতা দি আছেন। এছাড়া সমস্ত কার্যকর্তা বৃন্দ যারা রয়েছেন, সকলকে আমি বলবো আমাদের একটা অঙ্গীকার করার আছে। একবার সবাই উঠে দাঁড়াবেন, আমাদের এই অঙ্গীকার পত্র আমি পাঠ করব, আপনারা সবাই হাতটা এইভাবে করবেন এবং অঙ্গীকার পত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করবেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা এইভাবে করবেন। আমি প্রথমে আমি বলবো, তারপর সবাই নিজের নাম বলবেন, আমি আমার নাম বলবো। আমি অভিজিৎ তা স্বদেশী গ্রহণে অঙ্গীকার করছি এবং আমার দৈনন্দিন জীবনে ভারতের
ভারতে তৈরি পণ্যগুলি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করার সংকল্প করছি। আমি আত্মনির্ভর ভারত গঠনে অবদান রাখার এবং অন্যদের একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার অঙ্গীকার করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই আমাদের অঙ্গীকার হয়ে গেছে। বিষয় হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ভারতীয় যে সমস্ত পণ্য, ভারতীয় প্রোডাক্ট যাতে সারা পৃথিবীতে মান্যতা পাচ্ছে, সেই দিকে ভারত এগিয়ে চলেছে, উন্নত ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এবং আত্মনির্ভর ভারত, আগামী দিন ভারতবর্ষ এমন একটা আত্মনির্ভর ভারত হবে 2047 সালের মধ্যে, যাতে ভারতবর্ষের সমস্ত পিন টু এলিফ্যান্ট সমস্ত জিনিসপত্র ভারতীয়ই তৈরি হবে এবং ভারতবাসীরা ভারতের জিনিসই ব্যবহার করবে এবং গোটা পৃথিবী ভারতের উপরে নির্ভরশীল হবে, ভারতীয় প্রোডাক্টকে মান্যতা দেবে। সেই জায়গায় আমরা পৌঁছানোর জন্য আমরা ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করব, এই অঙ্গীকার আজকে গ্রহণ করলাম। সকলকে অনেক ধন্যবাদ, পথ চলতি মানুষকে ধন্যবাদ, প্রশাসনকে ধন্যবাদ, সাংবাদিক বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবারে আপনাদের অবগত করাতে আসছে বিশিষ্ট সমাজ সেবক ডক্টর আশিস ধারা। সকলকে নমস্কার। আমাদের সকলের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি যে দুটো অঙ্গীকার দিয়েছেন, তার মধ্যেই ইতিমধ্যে আমাদের জেলা সভাপতি একটি বলেছেন এবং দ্বিতীয়টি আমি আপনাদের সামনে রাখছি। প্রিয় বন্ধুরা, যুব সমাজ যে কোনো জাতির শক্তি এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের শক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই মাদক মুক্ত ভারত অভিযানে সর্বাধিক সংখ্যক যুবকের যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আজ আমরা নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অধীনে শপথ নিচ্ছি যে কেবল সমাজ, পরিবার, বন্ধু বান্ধব নয়, বরং আমরাও মাদক মুক্ত থাকবো, কারণ পরিবর্তন নিজেদের দিয়েই শুরু করা উচিত। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের জেলাকে মাদক মুক্ত করার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই। আমি অঙ্গীকার করছি যে আমার দেশকে মাদক মুক্ত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। জয় হিন্দ। এবারে আপনারা যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, আপনাদের সামনে এবারে বক্তব্য রাখতে আসছেন রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় সুরিন্দর সিং নাগার। ওনাকে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানান। सरदार पटेल के 150 में जयंती वर्ष में आज यहां वर्धमान में यूनिटी मार्च, आत्मनिर्भर भारत मार्च के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां मौजूद अभिजीत जी, विमल रॉय जी, हीरा दत्ता जी, उत्तरा विश्वास जी, अंजलि मुखर्जी जी, डॉक्टर आशीष धारा जी, कुंदन शाह जी, मधुमिता विश्वास मिश्रा जी, उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त, 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के नाम पर विभाजन हुआ।
वो विभाजन केवल एक वर्ग जो देश में सत्ता राज करना चाहता था, उन्होंने अपने राज करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन किया। और वो जब विभाजन हुआ तो वो भी आधा अधूरा हुआ, देश पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाया। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस समय भारत को सरदार पटेल जैसा गृह मंत्री मिला और उस सरदार पटेल की वजह से जो आधा अधूरा स्वतंत्रता भारत को मिली थी, भारत 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, उनको एक करने का काम, अगर किसी ने इस देश में एकता लाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है सरदार पटेल ने वो करने का काम। और उन्हीं सरदार पटेल को जो इतिहास के पन्नों में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाज में वो स्थान, इस देश के इतिहास में उनको सम्मान नहीं मिला। सरदार पटेल को के योगदान को याद करने के लिए जो भारत में आज एक है, एक झंडा है, एक संविधान है, जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी, उस सरदार पटेल को याद करने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए पूरे देश में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। और इससे जो उनका जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है, उसे कम नहीं आ सकते। यही सही मायने में जयंती के अवसर पर, उनकी 150वीं जयंती पर हम उनके योगदान को एकता यात्राओं के माध्यम से आज याद कर रहे हैं। और उसी यात्रा में शामिल होने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन इस देश की एकता सबसे जरूरी है। जिस तरीके से पूरे देश में आज माहौल है, जिस तरीके से इस देश की एकता को खंडित करने के लिए तरह तरह की चीजें की जा रही हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बंगाल का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की एकता बनाने में जो सरदार पटेल ने काम किया, इस देश की एकता को मजबूत करने के लिए इस बंगाल के लोगों का योगदान बना रहेगा। और उन ताकतों को आप यहां से बाहर करने का काम करेंगे जो इस देश की एकता पे चोट करने का काम कर रहे हैं, उसे खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये शपथ आज हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कहकर, आत्मनिर्भर भारत जिसकी शपथ आज आपने ली, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि कम से कम एक प्रोडक्ट हम जो भी हम खरीदें वो भारत में बना हुआ हो, वो खरीदें, वो पहने, वो खाएं जो भारत बनाता हो, भारत में उत्पादन होता हो। अगर इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए जरूरी है भारत आत्मनिर्भर बने। और भारत आत्मनिर्भर, भारत सरकार, खेल मंत्रालय और विभिन्न जो सामाजिक संगठन है देश में, वो सब मिलकर पूरे देश में लगभग 1500 से ज्यादा एकता यात्रा और आत्मनिर्भर भारत यात्रा का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। और उसी के अंतर्गत आज ये आयोजन हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रेस मीडिया देख रहे हैं ना, इसका कोई मैसेज नहीं है, एक मैसेज जो आता है वो बीजेपी के पास से आता है, दफ्तर से कोई मैसेज हमारा पास नहीं आता है। चलिए अब मैसेज है, आपको बात कर ही रहे हैं हम लोग। आप इसके भागीदार हैं, आप इसमें आपने शपथ भी ली है, तो आपका भी योगदान है इसमें। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में केवल आपका भी, पत्रकार भाइयों का भी योगदान होना चाहिए। आपने कहा बंगाल देश स्वाधीन के लिए बंगाल का भूमिका विशाल था, लेकिन आपका मध्य प्रदेश का
बारे में अभी जानकारी नहीं है जिस तथ्य को अगर मुझे जानकारी होगी तो निश्चित रूप से मैं आपका जवाब दूंगा। आपने बोला का जो मटेरियल है वो व्यवहार करने के लिए, लेकिन आपका जो मंत्री है कि और कोई मंत्री है, कोई राजनीतिक दल का जो मंत्री है, उन्होंने जो पोशाक व्यवहार 60 जो व्यवहार कर सब विदेशी है। देखिए, मैंने एक बात कही है कि भारत में जिसमें श्रम लगा, भारत में किसी भी हमारे मजदूर का जिसमें पसीना लगा, वो भारतीय प्रोडक्ट की आप बात कर रहा हूँ। आज भारत में जो विभिन्न प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर कारें मल्टीनेशनल कंपनी आके भारत में बना रही है तो वो भारतीय उसमें पसीना लगा है। अगर वो प्रोडक्ट जो भारत में बने हैं उनको हम लोग अपने जीवन में उपयोग में लाए, उसका शपथ आज हमने ली है, आज जिससे आने वाले 2047 में भारत आत्मनिर्भर बने। हमने शपथ लिए हैं कि एकता बनाने के लिए अपने शपथ हमने शपथ लेते हैं, लेकिन बार बार ये जो जंगी हमला हो रहा है, लास्ट दिल्ली पर हुआ है, क्या बोलेंगे? तो एकता का नष्ट कर दिया। देखिए, आप देखिए कि पूर्व में भी आपने देखा, पहले भी जब ऐसा कुछ हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब हुआ है देश पर कि अगर कहीं हमला हुआ है तो उसका मुंहतोड़ जवाब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके घर में घुसकर जाकर उनको जवाब देने का काम किया है। आने वाले समय में भी ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, आने वाले समय में भी जो भी ताकतें इसके पीछे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको जो सजा मिलनी चाहिए, जो सजा वो डिजर्व करते हैं, वो वहाँ तक पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार देखिए आप देखिए टाइमली अगर आप कहें तो इतनी बड़ी बहुत ही हमारी जो इंटेलिजेंस, जो हमारी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने टाइमली इसको पकड़ा, वहाँ तक पहुँचे। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, जिनकी मृत्यु हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो दोषी हैं उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार ये काम उनको अंजाम तक पहुँचाने का काम। देखिए जो केंद्रीय संस्थाओं ने पूर्व में काम किया है, भविष्य में भी वो ऐसा ही काम करेगा। धन्यवाद।